would like to welcome all of you. We are running Philippians 4 6 to 7. Philippians 4 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, be made known to God. And the peace of God surpasses all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Philippians 4 6 to 7. With these words and this text, I would like to welcome each and every one of you. मैं आप सबों को इस वक्त स्वागत करना चाहती हूँ हमारे वेस्पर्स मीटिंग में. परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे साथ सदा है. कभी हमारा हाथ उन्होंने छोड़ा नहीं. और जब हम सबत के शुरुआत में उनकी स्तुति और महिमा करने के लिए आते हैं, आइए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें. हे हमारे स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन देखने का मौका दिया. धन्यवाद देते हैं कि हम एक परिवार के जैसे एक परिवार के निमित्त यहाँ जमा हो सकते हैं. फिर तुझसे विनती और प्रार्थना करते हुए तेरे पास आ सकते हैं. पिता, हमारे दिल और दिमाग को तू छू, हमारे कमजोरियों को तू हटा. इस वक्त तेरी उपस्थिति हमारे बीच साथ चाहते हैं. हर घर में तू उपस्थित हो, हमें संतावना दे, ढाढ़स दे, हिम्मत दे कि चाहे हमारा जो दुनिया में जो सफर है जितना भी पेचीदा और कठिन क्यों ना हो, इस सफर से होकर के हमको गुजरना है. तेरे साथ तो हमें मदद कर और हमें भला चंगा रख और अपने प्यार में बनाए रख. इस वक्त पूरे सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं. इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. दया करके सुना ग्रहण कर. आमीन. Once again, I would like to welcome each and every one of you, and we are happy that all of you could be here. It was a very rough week for us, and we have gone through assure each other that the Lord is by our side and He has never left. So let's begin our service with thanksgiving and praise. And I would request Gilu Dada and Irene and Jamie to lead us in song service. Good evening and happy Sabbath once again, and good morning to the ones on the Western Hemisphere. For our first song, we will sing song number 518, Standing on the Promises. Our first song will be Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail. Oh, the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong blood, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on
promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Our next song will be song number 530. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh the joy of this glorious dawn. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when thy faith shall be signed. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Power in the blood. Our next hymn will be song number 294. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing?
There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Next hymn will be Worthy, Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to the Lamb. Savior, let thy kingdom come. Now the power of sin consume. Bring thy blessed millennium, Holy Lamb. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to the Lamb. Thus may we each moment feel, love Him, serve Him, praise Him still, till we all on Zion's hill see the Lamb. Glory, hallelujah, praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to the Lamb. The next song will be our opening song, and we'll sing Draw Me Nearer 306. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by thy power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour by the truth I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding Son. Thank you for joining with us. Over to you, Janelle. Thank you, Gilu, Dada, Bhabi, and Jamie for such a lively song service. We were definitely blessed. Jeremiah 30:17 says, "But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord." At this time, we would all bow down our heads and seek the Lord in prayer, and I would request
And Mr. Sailesh Hasda, Lolly Dada to lead us in prayer. हे मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुरक्षित सेफ रखा और इस पूरे वीक की जर्नी में, और जब हम आज का दिन, पवित्र दिन, साबित की दिन में जब प्रवेश करते हैं, आपने हमें हर एक चीजों से, हर एक तकलीफों से दूर रखा। जो पीछे जो बीते हफ्ते में जो कुछ हुआ, हमारे लिए बहुत दुख था। हम बहुत सैड थे, किंतु हम ये विश्वास करते हैं कि जो भी हुआ उसमें आपका प्लान है, और आप देखना चाहते हैं कि हम आपके रास्ते, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सके। आज जब हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर आप आशीष दें। हमें जो भी वचन, जो भी गीत, जो भी प्रोग्राम का प्रिपेयर किया गया है, उस पर आपकी आशीष हो, और हमें प्रॉपर मार्गदर्शन दे, ताकि जो भी हम समझे, जो भी हम सुने, उसे प्रॉपर वे से हम इम्प्लीमेंट करें। पिता, हम अपने प्रार्थना में याद करते हैं जो हमारे परिवार के लोग जो बीमार है, स्पेशली क्लाउडिया, मौसा, मौसी, जेठ के पिताजी, कापरा, और जितने लोग हैं उन सबके साथ है। उनको उनको जल्दी से चंगा कर, ताकि वो वापस स्वस्थ फॉर्म में रह सके। और हम अपने प्रार्थना में याद करते हैं मोना दीदी के जितने भी वेरी क्लोज, वेरी डियर, उन सबके साथ है। उनको भी इतना स्ट्रेंथ दे कि जो लॉस हुआ है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे, और उनका जो जिंदगी बीता उसको प्रॉपर सेलिब्रेट कर सके। पिता, हम आज का जो प्रोग्राम है आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें अगुवाई कर, हमें ज्ञान दे, ताकि जो भी हम सुने उसको प्रॉपरली अपने जिंदगी में डाल सके। हमारे पाप गुनाह को क्षमा कर। इस छोटी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो। आमीन। थैंक यू दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत प्रार्थना के लिए। इस वक्त ये समय है हमारा क्विज के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सबों ने पढ़ा है, छोटे बड़े सब कोई। और मैं याद दिलाना चाहूँगी कि इस बार का क्विज जो है वो नंबर 16 टू 18 चैप्टर से है, नंबर 16 टू 18, जिसमें रिबेलियन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लीडर्स के बारे में है। और मैं आशा करती हूँ आप सबों ने इसे अच्छे से इसकी अध्ययन किए। ये वक्त मैं स्टेला मुर्मू को देना चाहती हूँ। स्टेला, वो आकर के हमें क्विज में आगे बढ़ाए। I'd like to give this time to Stella. गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हैप्पी साबर। आज का जो क्विज है वो नंबर 16 से 18 से लिया गया है, और आशा है कि आप सब पढ़े हैं, और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो प्लीज़ क्विज पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ लेसन आपको सीखने में मिलेगा। और
I really want to thank for that very lively and I should also say little tricky quiz. I'm sure it's an encouragement to all to know your scriptures well, and I'm sure next time all of us will prepare ourselves better, um, so that we know how much we remember. Okay, thank you, Stella, and congratulations to all the winners. We are so delighted and thankful to God that we have Dr. King Harold Kisku and family, King Dada, Alice Bhabi, and the kids Sonu Ebi for uh, preparing a special song for all of us. We are always blessed by this family with songs and praises, and this family is all full of talents. So I'm thankful to God that at this time they are here and they're going to present to us a special song. Over to you, King Dada. Yeah, the song that we have chosen today is based on this verse from the book of Second Chronicles, chapter 7, verse 14. This was the time when the children of Israel were suffering from a similar pandemic, and they cried out to the Lord and said, and the Lord promised that if the people who call on my name will humble themselves and pray, and if they turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive them and heal their land. So we want to sing this song because our nation also is going through a very bad pandemic. We have lost loved ones. Our loved ones are sick, and many people are not doing well. Maybe we all turn our hearts to the Lord and pray for the Lord to heal our land. And that's the song that we want to present to you. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land.
That was a very lovely, meaningful song. Would like to thank you, King Dada Bhabi and Ebi Sonu, for that lovely song. Isaiah 33:2 says, Lord, be gracious to us. We long for you. Be our strength every morning, our salvation in times of distress. Would like to invite at this time Mr. Samuel Hemram to share from the word of God. इस वक्त मैं मिस्टर सैमुअल हेमरम को ये समय देना चाहती हूँ कि वो इस वक्त हमारे सामने आए और परमेश्वर के वचन से बांटे, ताकि हम परमेश्वर का प्यार, उनका संतावना को महसूस कर सके. Good evening, everybody from India, and good morning, all those who are in abroad. आज मैं आप सबों के सामने आप सबों का ध्यान ईश्वर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और हम लोग अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करेंगे और ये देखेंगे कि हमें ईश्वर के साथ मिलके क्या करना है. बीते सप्ताह जिस तरीके से हमारा बीता है और बहुत दुख का समय रहा है, एक परिवार नहीं, बहुत से परिवार में ये दुख की लहर हमारे इस इलाके में आसपास इधर उधर बहुत से लोग आज के इस कोरोना वायरस से दुखी या तकलीफ या अपने आप को यानी अपना जान गंवा दिए हैं. और हम लोग इस वक्त जब रहते हैं, हम ध्यान से अपने आप को रखें. मैं कल शाम और कल सुबह डॉक्टर जॉर्ज का जो टॉक था उसको सुने और बहुत ही अच्छा था, जिसमें वो यही बताने चाहे कि इस कठिन समय में हम किस प्रकार भले चंगे रह सकते हैं. तो हम लोग ईश्वर को याद रखें और ईश्वर को याद रखते हुए सारे दिशा निर्देश का हम पालन करें, जिसमें हम भले चंगे और ईश्वर के साथ बचाए जा सकते हैं. इस वक्त आज के वचन में जाने के पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे. हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज शाम को जब वेस्पर मीटिंग के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, तेरे वचन की आशीष हम सबको दे. जो कुछ भी हमारे मुंह से निकले वो मेरा नहीं प्रभु, लेकिन तेरी अगुवाई और वो तेरा वचन हो सके, और हम सब कोई सुनने वाले खुद के लिए नहीं लेकिन उसके लिए, प्रभु के लिए जीने को अपने आप को समर्पित कर सके. पापों को क्षमा किया है, ग्रहण किया हमें, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं और मदद करके हम तेरे लिए इसी प्रकार अपने आप को इस्तेमाल करते रहें. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, देखकर सुनो, ग्रहण कर, आमीन. आप लोगों के इलाके में हाल मौसम कैसा है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ घाटशिला में आज शाम से हमारा मौसम बिगड़ा हुआ है. अंधेरा था पूरा शाम और तूफान चल रहे थे और लाइटनिंग था, थंडरिंग था, अभी भी चल रहा है. अभी भी हम रुक रुक करके आवाज़ सुनते रहते हैं. मेरी आशा है कि हम लोग इस प्रकार के लाइटनिंग थंडर में जब हम लोग यहाँ से आप सबों के साथ बातें करते हैं, हमारा सब कुछ ठीक रहे और कोई भी तकलीफ और कोई भी मुसीबत और इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना हो. आज शाम को मैं आप सबों का आकर्षण बाइबल के उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ जो हमको मिलता है रोमियम की पत्री 15 अध्याय, रोमियम की पत्री 15 अध्याय उसके 4 पद में
मैं पढ़ता हूँ, जितनी बातें पहले से लिखी गई है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र से प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जितनी बातें पहले से लिखी गई है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है, अर्थात ये जो धर्मशास्त्र है हमारा, ये आज का पुस्तक नहीं है और ये आज नहीं लिखी गई है। आज हमारे पास निश्चय है, लेकिन ये जो लिखा गया है एक समय में नहीं लिखा गया है और एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, और समय समय के अनुसार इसको काफ़ी समय लगे हैं इसको पूरा करने में, और ये वचन पूरा हुआ है लिख करके। और इस वचन की विशेषता है कि जो भी एक व्यक्ति लिखा है, बहुत 66 पुस्तकें हैं और जितने भी लिखने वाले हैं, ये सब लिखने वाले जो लिखे हैं, जरूर वे लिखे हैं, लेकिन वे सब पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा बाइबल लिखे हैं। और इस बाइबल को हम शुरू से लेकर के अंत जहाँ भी पढ़ें, सब स्थान में हमको शिक्षा ही शिक्षा इसके द्वारा मिलती है। और इस कारण इस बाइबल को हम लोग यूं ही एक साधारण पुस्तक ना समझें, लेकिन इस पुस्तक को प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए व्यक्ति, प्रेरित किए लेखक इन सारे पुस्तकों को लिखे हैं। और जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, यहाँ लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारे ही शिक्षा की लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र से प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज रखें, धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन हम लोग उससे प्रोत्साहित हों। प्रोत्साहन माने हम लोग एनकरेज हों, और एनकरेज होकर के उसमें हम लोग बने रहें और आशा रखे रहें। ये आशा की पुस्तक है, इससे हम लोग को आशा मिलता है, इससे हमको शक्ति मिलती है, इससे साहस मिलता है, और जब इसको पढ़ते हैं तो हम इसके नज़दीक पाए जाते हैं। तो मैं आज इस बाइबल के पुस्तक से उस प्राचीन काल के व्यक्ति जिसने पहला 5 पुस्तक लिखा है, और उस 5 पुस्तक जिन्होंने लिखा है और जिस पीरियड में वो लिखा था, वो पीरियड के पहले हम उस व्यक्ति का नाम जानेंगे। वो कौन था? मूसा था। और मूसा की कहानी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मूसा अद्भुत तरीके से उसका पैदा हुआ। कठिन समय में जब वो पैदा हुआ, वो मार डाला जा सकता था, नाश हो सकता था, लेकिन ईश्वर का हाथ उस पर था और ईश्वर उसको बचाया और उसको रक्षा किया। और उसको ये सौभाग्य मिला कि वह फिरौन के घर में, फिरौन के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा उसको मिली। और भविष्य में लोगों का यह भी कहना था कि मोसेस आगे चल करके फिरौन भी बन सकता था। और जब वह राजमहल में फिरौन की बेटी का बेटा होकर के फिरौन के साथ जी रहा था, उससे पहले जब उसकी माँ को यह अधिकार दिया गया कि तुम इसकी दाई बन करके इसका देखभाल कर सकती हो, और जब उसकी माँ दाई बन करके मोसेस का देखभाल करती थी, उसकी माँ जोकोबेद उसको हर एक चीज़ जो ईश्वर
उस मूसा के द्वारा चाहता था वो सारी चीजें बता दिया था। जेकोबेद को मालूम था कि ये बेटा ईश्वर के तरफ से है और इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल के ले जाएगा, और उसके मन में वही एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि अपने लोगों को, जो भी वह फिरौन के राज घराने में पैदा लिया नहीं, पाला पोसा गया और फिरौन का से जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके मन में यह विचार था कि किस प्रकार वह इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल के ले जाएगा। और जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया तो उसने चेष्टा भी किया, उसने चेष्टा भी किया मिस्रियों को मार करके इसराइलियों के पक्ष में अपने आप को रखे। और जब इसराइलियों को मार करके जब वो मिस्रियों को मारा और इसराइलियों के पक्ष में अपने आप को रखना चाहा, तो इसराइली लोग उससे खुश नहीं थे। और जब देखा कि इसराइली उससे खुश नहीं है, दूसरी बार की लड़ाई में जब उसने मिस्रियों को मारा और इसराइलियों को ये संवाद देना चाहा कि वो उनके पक्ष में है, लेकिन इसराइली जब खुश नहीं थे और ये मैसेज फिरौन के पास चला गया तो वो डर गया। तो यहाँ हम इस भाग में देखेंगे कि मूसा डर गया, और मूसा का डरने का यह कारण था कि वह फिरौन की जितनी भी शिक्षा, जितनी भी राजाओं के लिए या फिरौन के बच्चे के लिए सीखने की आवश्यकता थी, वो सब कुछ सीख गया था। और सीख करके वह एजुकेटेड व्यक्ति था। किस प्रकार इतना बड़ा साम्राज्य जो मिस्र देश का साम्राज्य था उसको चलाने लायक एक व्यक्ति बन गया था। और एक व्यक्ति बन करके वह यही सोच रहा था कि मैं कब इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल के ले जाऊंगा। और वो एक दो काम शुरू करते हुए लोगों के सामने और इसराइलियों के सामने उनके पक्ष में और उसके नाम कमाने चाहता था। और लेकिन जब वो उसके पक्ष में काम करना चाहा और सोचा कि इसराइलियों के पक्ष में काम करूंगा और उनको बचाऊंगा, देखा कि उसके अपने लोग जिनके लिए काम करना चाहता था वे उससे खुश नहीं थे। और जब वे खुश नहीं थे और फिरौन को पता चला कि वो इसराइलियों मिस्रियों को मारा है, तो वो डर गया और डर के वहां से भागा। जो भी वो उसकी योग्यता थी, बुद्धि था, समझ बूझ करके बहुत काम कर सकता था, लेकिन जब अपनी ताकत और अपनी शक्ति को वहां इस्तेमाल करना चाहा और जब फिरौन के पास उसका मैसेज चला गया, वह डर गया और डर करके फिरौन से डर गया और वह भाग गया। भाग करके इतना दूर चला गया, मिदियोन देश चला गया। और मिदियोन देश में जाकर के एक परिवार के साथ उसकी मुलाकात होती है और उस परिवार में आश्चर्य तरीके से उसको शरण मिलता है। और शरण मिला और वहाँ पर वो उनके साथ रहने लगा। और जेत्रो जो उसका ससुर था, जेत्रो जो उस घर का मालिक था, उसकी बेटियां थी, उन बेटियों में से बड़ी बेटी को जेत्रो मूसा को शादी दिलाया और शादी करके वो उस घर का दामाद हो गया। और घर का दामाद होकर के घर की संपत्ति का देखभाल करने लगा। भेड़ बकरी थे, उसको चराने के लिए जंगल और पहाड़ों में ले जाया करता था। और जितनी सारी चीजें वो सोच रहा था कि वो मिस्र देश में रह के करे, वह सब कुछ भूल गया। वहाँ वो जंगल में भेड़ बकरियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और अपना जीवन जब वो भेड़ बकरियों के साथ व्यतीत कर रहा था, ईश्वर उसके साथ मुलाकात करता है। एक जलते हुए झाड़ी के पास ईश्वर उसको दर्शन देता है, हम कहानी में जानते हैं। और जब उस जलते हुए झाड़ी के पास गया और जलती हुई झाड़ी को देखा कि वो झाड़ी से तो आग का लौ निकल रहा है, लेकिन
आग के लौ से और आग से झाड़ी जलकर खत्म नहीं हो रहा है। उसको बहुत अजीब लगा और वो नजदीक गया, और जब वो नजदीक गया तो उसे आवाज सुनाई दी, और आवाज उससे कहा कि हे मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है, और उस स्थान में से तू अपना पैर का जूती उतार के रख। और तब ईश्वर उससे बातें करता है। उस जंगल में, मिदियोन देश के जंगल में ईश्वर उससे बातें करता है। मूसा बहुत कुछ सीख करके भाग गया था, और बहुत कुछ सीख करके उन सारी चीजों को वह अपने लोगों के लिए व्यवहार करना चाहता था, लेकिन जब वो कोशिश किया व्यवहार करने के लिए, वह असफल रहा, और असफल होकर के उसको वहां से भागना पड़ा। कहाँ भागा वो नहीं जान रहा था, लेकिन भागते भागते उसको एक जगह मिली जहाँ पर उसको शरण मिला, और शरण सिर्फ नहीं मिला, उसको पत्नी भी मिली, और उस पत्नी के घर परिवार और ससुर और सास के साथ वहाँ जीवन व्यतीत करने लगा। और जब वो जंगल में वो रह रहा था, उसी जंगल में ईश्वर उससे मुलाकात करता है। जो भी मूसा की इच्छा में, जो भी मूसा के मन में वो इच्छा थी, जो उसके माँ उसके मन और दिल दिमाग में कूट कूट कर भर दिया था कि तुम इसराइलियों को मिस्र देश से लेके जाएगा, और वो आज इसराइलियों को मिस्र देश से ले जाने के जगह जंगल में वो समय व्यतीत कर रहा है। 40 साल मूसा उस जंगल में व्यतीत किया, और 40 साल सिस्टर वाइट के द्वारा बताया जाता है कि वो ईश्वर के संगति में रह करके बड़े बड़े काम के 5 पुस्तक जो मूसा ने लिखा, उसी पीरियड में उसने 5 पुस्तक लिखा। उत्पत्ति की पुस्तक, नहीं माफ कीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक जो मूसा ने 5 पुस्तक लिखी थी, 5 पुस्तक में पहला पुस्तक जो उत्पत्ति की पुस्तक है, मूसा इसी जंगल में ईश्वर की अगुवाई और ईश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के वो लिखा। उत्पत्ति की कहानी, उत्पत्ति की घटना कोई नहीं जानता था, मूसा तक, और मूसा भी नहीं जानता था, और मूसा उत्पत्ति का पुस्तक लिखा। और लिखने का कारण था कि जिस प्रकार हमने बताया कि परमेश्वर के भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाकर बाइबल के भिन्न भिन्न पुस्तकों को लिखे, और मूसा भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाकर के पहला पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसको हम लोग साधारण और मनगढ़ंत कोई कहानी न समझें, वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाकर के वो लिखा गया है। और उस पुस्तक को नया नियम में, पुराने नियम में काफी लोगों के द्वारा कोट किया जाता है, और इससे यह प्रमाणित होता है कि वो पुस्तक सही पुस्तक और ईश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के वो पुस्तक लिखी गई। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मूसा जो फिरौन के राज में रह करके जो शिक्षा सीखा, उस शिक्षा को वह इसराइलियों के लिए लागू करना चाहा, लेकिन उसको मिस्र देश से भाग जाना पड़ा। हम लोग और आज के जितने भी लोग हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, हम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं, अच्छी बात है। MBBS डॉक्टर और उस लाइन में भी बहुत ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं, अच्छी बात है। और आज के बच्चे जितने पढ़ाई कर रहे हैं, सब बच्चे ऊंची ऊंची शिक्षा और अच्छी शिक्षा हासिल करने की कोशिश में रहते हैं, और जितना भी ऊपर तक पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं। और हम लोग के बीच में बहुत से लोग पढ़े भी हैं, लेकिन उस पढ़ाई के साथ हम लोग को सब समय याद रखना चाहिए, हमारा ये पुस्तक, ये बाइबल,
जितने लोगों ने इस पुस्तक को बाकी पढ़ाई के साथ लेकर के चला है उनका जीवन अलग है। और बहुत से लोग इस पुस्तक को ध्यान नहीं दिए हैं और इस पुस्तक को ध्यान नहीं दे करके अपने तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। और थोड़ा टाइम, जैसा कि आज के दिन का यही चर्चा होता है, आज के दिन का चर्चा यही है कि हमारे पास समय नहीं है, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके लिए समय है, टीवी के लिए समय है, लैपटॉप के लिए समय है, और इन सारे चीज़ों के लिए समय है। और इन सारे चीज़ों को लेकर के हम क्या करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। और जब समय आता है कि हम बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल से सीखें, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ, बाइबल पढ़ने का हम समय रखे हैं और मॉर्निंग वॉच कमेंट्री में से भी पढ़ने का समय रखे हैं। सिस्टर वाइट का बायोग्राफी में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगता है, एकदम बिल्कुल मन में जोश पैदा हो जाता है। और बाइबल भी उसके साथ पढ़ते हैं, मन बहुत प्रोत्साहित हो जाता है। जैसा कि कहा गया, पुरानी चीज़ों से प्रोत्साहित होना है, पढ़ते हैं वो हमारे लिए है। और उन सारे चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे प्रोत्साहन के लिए ये सारी चीज़ें लिखी गई है। तो हम जो कुछ अपने जीवन में ऊंचे लेवल या ऊंचे स्तर का शिक्षा हासिल करते हैं, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ हम इसको ना भूलें, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो समय नहीं है। और जितने कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में काम करते हैं, दिन रात उनको मोबाइल से जुड़ा रहना पड़ता है। मैं यहाँ पर बच्चों को देखता हूँ, हमारे स्कूल में इन्होंने पूरी कोशिश किया है कि सारी जो शिक्षा है, सारा जो कंट्रोल करना है, सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया है और इनको सब समय कंप्यूटर से लगा रहना होता है। तो कंप्यूटर से लगा रहना अच्छी बात है, लैपटॉप से लगा रहना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इस जीवन के लिए हमको अपना बाइबल अध्ययन के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए भी समय रखना बहुत ज़रूरी है। मैं घर में देखा हूँ, बच्चे लोग कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बाइबल नहीं, बाइबल के साथ साथ सिस्टर वाइट की पुस्तक, जो भी पुस्तक है उसको लेकर के पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सिस्टर वाइट की पुस्तक है पढ़ते हैं, हमारा जीवन का जो नज़रिया है, हमारे देखने का जो नज़रिया है, बदल जाता है। और जब हम भरोसा, और जैसे कि अभी कोविड का ये दूसरा राउंड चला हुआ है, कोविड का पहला राउंड में हम पहले इसको टेस्टिमोनी में भी बताए थे कि कोविड के फर्स्ट राउंड में जब यह अनाउंस हुआ था कि कोविड पूरे तेज़ी से फैल रही है और हम लोग सब लॉकडाउन में थे, सब बंद हो गया, कोई बाहर नहीं जाता था। ऐसे समय में मैं बीमार हो गया था, मुझको ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए, ले आने के लिए मरविन और जॉर्ज और जेनल जाते थे, ले आते थे। और इसी पीरियड में घर में एक बहुत ज़बरदस्त एक रेवोल्यूशन घर में पैदा हुआ कि हमको क्या करना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। एक तो मेरी बीमारी थी और एक मामी मिसेस हेम्ब्रोम की बीमारी थी, और हम सब समय प्रार्थना करते थे और सब समय प्रार्थना करके इन मामी को परमेश्वर के सामने लाते थे और लाते समय वही पुराना घिसा पीटा प्रार्थना होता था, और इस घिसा पीटा प्रार्थना रूटीन प्रेयर होता था और कर देते थे। ईश्वर सुनता था, मदद भी किया, लेकिन उस तरीके से हम लोग प्रार्थना नहीं करते थे। जब इस लॉकडाउन में हम परमेश्वर का वचन पढ़ते थे और सिस्टर वाइट की पुस्तक मॉर्निंग वॉच कमेंट्री पढ़ते थे और उसके गहराई में जाते थे, और गहराई में जा करके
और समय व्यतीत करते थे। और हमारा वर्शिप का टाइम जो कि हम लोग मुश्किल से 15-20 मिनट में पढ़ करके प्रार्थना करके ख़त्म कर देते थे, लेकिन हम लोग का समय बदल गया और समय बदल करके हम लोग सिर्फ 15-20 मिनट नहीं, हम लोग का घंटों बीत जाता था। घंटा पार होकर के भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे हमारे डिस्कशन से। और इस प्रकार का हम लोग परमेश्वर के संगति और परमेश्वर के नज़दीकी में आने का ये हमने समय व्यतीत किया और हम लोग को बहुत हल्का महसूस हुआ। और इससे पहले कि हम चिंता करें, इससे पहले कि हम सोचे कि क्या करना है नहीं करना है, ईश्वर हमारे लिए व्यवस्था कर दिया था। हम इस चीज़ को बताए हैं। हम लोग का जैसे पहला लॉकडाउन हुआ था और हम लोग का स्कूल रजिस्ट्रेशन, बच्चों की जो नाम लिखाई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो समय चल रहा था और 23 तारीख ये हमारा स्कूल शुरू होना था रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसी 23 तारीख को क्या हुआ, लॉकडाउन अनाउंस हो गया। और लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद क्या हुआ कि सबको अपने घर में चले गए। इमीडिएटली तो हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए, लेकिन 1 महीना जैसा हमको लगा ऑनलाइन क्लास करने में, और ऑनलाइन क्लास करने में 1 महीना जैसा लगा। और सब कुछ तैयारी करने में हम लोग को थोड़ा टाइम लगा। और जब से हमने ऑनलाइन क्लास शुरू किया, बहुत से बच्चे जितने को नाम लिखाए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, सबों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया। और जितने लोग नहीं थे, ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किया, अब लोग उनको यही समझ में आया कि ये ऑनलाइन क्लास क्या है। तो ईश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमने उस पीरियड में रजिस्ट्रेशन किया था बच्चों का, और एक जो पैसा जमा हुआ था, उस पैसा से ईश्वर हमारी देखभाल किया। और जॉर्ज हमसे कहा सितंबर अक्टूबर में कि पैसा तो जितना जमा था वो तो ख़त्म हो जा रहा है, आगे का क्या होगा। तो हम उसको यही बोले, ईश्वर की सहायता और मदद से हमने उसको यही बोला कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पैसा ख़त्म हो गया, हमने जो तनख्वाह देना था सब तनख्वाह दे करके जो पैसा था सब खत्म हो गया। और फीस कोई नहीं दे रहा है, पैसा स्कूल में नहीं है, लेकिन ईश्वर का हाथ ऐसा हमारे ऊपर था कि वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आ गया और हमको पता भी नहीं चला कि हम कैसे करके समय व्यतीत किए। तो मेरा यही कहना है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर से जुड़े रहने से परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। और दुनियादारी, पढ़ाई लिखाई से हम जुड़े रहते हैं, और हमारा जब भरोसा दुनिया के पैसे और दुनिया की योग्यता और दुनिया में जो हम नाम हासिल किए रहते हैं, उन सारी चीज़ों पर जब हम भरोसा करते हैं, मूसा जैसा भरोसा किया और भरोसा करके इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने का वो कोशिश किया, लेकिन वो नहीं सका। हम लोग भी जब कभी अपने योग्यता, अपने काबिलियत में भरोसा करते, अपने पैसा और अपने सब कुछ में भरोसा करते हैं, तो हमको ईश्वर की सफलता, ईश्वर की अगुवाई नहीं मिलती है। क्योंकि सब कुछ का देने वाला, सब कुछ का करने वाला कौन है? ईश्वर है। इतना जो हमारे घर परिवार और सबको जो कुछ देता है, करता है, दुनिया को पालता है, सब कुछ, ये ईश्वर की दया है, ईश्वर की कृपा है। और अगर हम ईश्वर की कृपा को नकार दें, ईश्वर की कृपा को एक तरफ हटा दे और इस दुनिया में रह करके दुनिया की शिक्षा और दुनिया की योग्यता को इम्पोर्टेंस दे और इम्पोर्टेंस दे करके उस पर भरोसा करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हताश, निराश होकर के, डर करके हमारा हालत ऐसा हो जाएगा कि हम और खड़े नहीं हो सकेंगे।
तो मूसा को ईश्वर उस जंगल में 40 साल तक तैयार किया, और 40 साल तक तैयार किया, और 40 साल ईश्वर के संगति में रह करके मूसा, जो कि घमंडी और अपने ताकत और अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि में विश्वास और भरोसा करने वाला व्यक्ति था, वह एकदम नम्र हो गया, वो एकदम दीन हो गया। और उसको नम्र और दीन होने में तुरंत एक पल, एक क्षण में वो नहीं हुआ। जलती हुई झाड़ी को देख करके उसका मन नहीं बदला। जलती हुई झाड़ी को देखा और देख करके पास गया और ईश्वर उससे बात किया। ईश्वर के कुछ बातों के द्वारा सिर्फ वह बदल गया और तैयार हो गया, ऐसी बात नहीं। हर एक दिन ईश्वर से बातें करता था, हर एक दिन ईश्वर की संगति में रहता था, हर एक दिन ईश्वर की संगति में रह करके लाइफ, जीवन में जो डिसिप्लिन, जीवन में जो ईश्वर के साथ रह करके ईश्वर के साथ जो डिसिप्लिन सीखना था, उस चीज को उसने सीखा और इतना नम्र और इतना दीन हो गया। और जब ईश्वर उसको पूरा तैयार कर चुका डिसिप्लिन करके, और जब उसको भेज रहे कि जाओ तुम मिस्र देश वापस जाओ और इस्राएलियों को निकाल के ले जाओ, मूसा कहता है कि मैं नहीं सकूंगा। जब अपनी शक्ति अपनी योग्यता में था और अपने बुद्धि ज्ञान में था, वो हिम्मत किया और सोचा कि क्या करेगा, वो इस्राएलियों को लेके जाएगा। इस्राएलियों को फिरौन से वो चाल खेल करके इस्राएलियों को अपने पक्ष में सबको करके किस प्रकार से करता, किस प्रकार की शिक्षा उसने हासिल की थी हम नहीं जानते थे, लेकिन अपने शिक्षा अपनी बुद्धि में काफी कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंट होकर के यही सोचा कि मैं क्या करूंगा, इस्राएलियों को अपनी बुद्धि अपनी योग्यता से क्या करूंगा, ले जाऊंगा। लेकिन वो नहीं हुआ। और जब जब ईश्वर उसको 40 साल तैयार किया, तब वो कहता है कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। ये सब नम्रता और दीनता का यह एक उदाहरण है। मूसा इतना नम्र और इतना दीन हो गया कि वो ईश्वर के साथ भी होकर के हिम्मत नहीं उठा, लेकिन ईश्वर उसको कहा और वो जाता है। और हम कहानी जानते हैं कि ईश्वर मूसा की अगुवाई से अद्भुत तरीके से उतना बड़ा साम्राज्य के सामने मूसा अकेले खड़ा हुआ। कैसे खड़ा हुआ? क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। मूसा उतने बड़े साम्राज्य, उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य मिस्र सिविलाइजेशन और यह मिशन इजिप्शियन एम्पायर, बहुत बड़ी एम्पायर थी। उस एम्पायर के सामने मूसा खड़ा होता है, उस फिरौन के सामने मूसा खड़ा होता है। और जिस प्रकार से मूसा को आज्ञा मिली, सारी आज्ञाओं को के अनुसार वो करता गया। हम लोग जानते हैं 10 विपत्ति की कहानी, और 10 विपत्ति के अंत में जब फिरौन नहीं मान रहा था, ईश्वर मूसा के द्वारा वो विपत्ति उस पर आने दिया, जिसके बाद हर एक पहले उठे का मरने का विपत्ति आने दिया। और ये विपत्ति जब फिरौन और मिस्र देश में आया, फिरौन घबरा गया और कहा कि तुरंत तुम लोग यहाँ से निकल के चले जाओ। और वो लोग निकलते हैं और उनके सामने कठिनाइयाँ और मुसीबत थी। मूसा को एक बड़ी जाति को लेकर के जाने का एक अनुभव नहीं था, लेकिन एक अनुभव उसके पास था कि वह ईश्वर के साथ था। ईश्वर के साथ था और ईश्वर की बातों को सुन करके वो कदम उठाया और फिरौन के सामने खड़ा होने का हिम्मत किया। और फिरौन के सामने खड़ा होकर के सारी अगुवाई जो ईश्वर के था उस सबको पालन किया। और ऐसा हालत में पहुंचा कि फिरौन उससे घबरा गया और उससे कहा कि तुम लोग सब कोई यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और वे निकल जाते हैं। और जब वो निकलते हैं, कहानी में लोग जानते हैं, एक ही कहानी का मैं वर्णन करूंगा। जब वो
लाल समुद्र के सामने खड़े हुए, और इस्राएली जो जिनको वो अपना समझता था और जिनके लिए वो सोचता था कि उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो इस्राएली उसके विरोध में बातें करने लगे। और ऐसे समय में भी वो दीनता और नम्रता के साथ आगे बढ़ा, और ईश्वर उसके साथ रहा, और ईश्वर उसके सामने लाल सागर को खोल दिया, और वे लोग लाल सागर के उस पार गए। और दूसरी बात ये भी हुई, लाल सागर के उस पार जब गए, इस फिरौन और मिस्री आर्मी भी पीछे गए, और सब समुद्र में ढाप दिए गए। तो ये कहानी मैं थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी दूर तक बता दिया, लेकिन इसमें विशेष बात यही है कि अगर हम ईश्वर के पास समर्पित होते हैं, ईश्वर के तरीके को हम जब सीखते हैं और इसके ईश्वर के साथ चलने का एक हिम्मत और ताकत रखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ना भूलें। ईश्वर के साथ चलने का हिम्मत और ताकत रखते हैं, ईश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देता है। हर एक दिन हम आजकल मॉर्निंग वॉच कमेंट्री में सिस्टर वाइट की पुस्तक पढ़ते हैं, हर एक दिन के पाठ में हम लोग यही सीखते हैं, और हम लोग को बार बार यही सिखलाता है कि अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा मत लो। अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा अगर हम जब लेते हैं, मूसा के जैसा काम करते हैं, तो शैतान ऐसे हालत में हम पर हावी हो जाता है और हमको इतना अंधा और इतना कमजोर बना देता है कि हम शैतान के साथ बहक जाते हैं और वो सारे काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो काम ईश्वर हमारे लिए नहीं रखा है, जो ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए नहीं है। लेकिन हम पूरी रीति से जब उसके पास आते हैं, उसके दूत, उसकी आत्मा हमारे साथ मिलता है और ईश्वर का अगुवाई हमको मिलता है, और अगुवाई मिलता है और अगुवाई लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये एक दिन नहीं, एक दिन हम उसके अगुवाई के पाए अच्छे हो गए और अच्छे होकर के हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक दिन उसकी अगुवाई मिली, लेकिन एक दिन अगुवाई मिलने के बाद भी हम क्या हो जाते हैं, दूसरी बार जब परीक्षा सामने आती है तो फिर हमारा सेल्फ, हमारा व्यक्तित्व जाग उठता है, और वो व्यक्तित्व हम लोग को क्या करता है, और हमको आगे परमेश्वर से दूर हटाता है। तो इस प्रकार का जीवन, हमारे इस प्रकार का हालात हमारे जीवन में मिलेगा, लेकिन हमको बार बार लौट करके ईश्वर से जुड़े रहना है। और जब उसके पास लौट के आएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। ईश्वर हमको क्या करता है, तैयार करता है। मूसा को 40 साल समय लगा मूसा को तैयार करने में, और हम एक बार उसके दया और अनुग्रह को पा करके और खुश हो जाते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। इतना काफी नहीं है। ईश्वर के लिए खड़ा होना, ईश्वर के लिए काम करना, ईश्वर के लिए प्रचार करना, ये एक दिन का काम नहीं। हम ईश्वर के साथ हम लोग को इतना जुड़ जाना है कि अगर शैतान की परीक्षाएं भी हमारे पास आए, वो परीक्षा हमको नहीं हिलाएगी। दुनिया का जितना भी लोभ लालच और जो कुछ भी हमारे सामने आएगा, वो भी हमको ईश्वर से अलग नहीं कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम लोग को इस चीज को ध्यान में रखना है। ईश्वर से जुड़े रहना है, ईश्वर में बने रहना है, और जब ईश्वर में बने रहते हैं तब हमको ताकत मिलता है, और ईश्वर से भटक जाते हैं तुरंत शैतान हमको अपने कब्जे में लेकर के दुनिया की सारी चीजों को दिखाता है, और दुनिया के सारी चीजों के द्वारा हमको प्रलोभन देता है और हमको भटकाने चाहता है। तो आज शाम के समय मैं सबों से यही विनती करना चाहता हूँ, जैसा कि हम देखते हैं कि माहौल बुरा है, एक एक परिवार से लोग उठाए जा रहे हैं। हमारे घर में जैसा हमने सुना, बहुत बुरी घटना घटी। यहाँ पर भी हमारे मिसेस के घर परिवार से भी 2-3 जन बहुत जल्दी और बहुत नज़दीक और बहुत हट्ठे कट्ठे जवान और काम करने वाले लोग व्यक्ति उठा लिए गए, और ये बहुत दुख की बात है। और बहुत
सोचने की बात है। तो ऐसे हालत में हम लोग को मजबूत होना है, प्रभु में इस प्रकार मजबूत होना है कि हम प्रभु में इस प्रकार मजबूत होना है कि हम दुनिया के इस महामारी से न घबराएं। महामारी जो कि शैतान के द्वारा, दुनिया की ताकत के द्वारा यह सृष्टि किया गया है, और जब ये सृष्टि किया गया है और बहुत आसानी से पूरे दुनिया में फैल रहा है। और एक बार की मैं घटना मैं बता रहा हूँ, जब पहला कोविड था और धनसिद्ध लकड़ा अमेरिका में जो रहता है उससे मेरी बात हो रही थी, और 1 साल पहले, और जब उससे मेरी बात हो रही थी तो मैं अपने मिसेस के बारे में बता रहा था, किस प्रकार से वो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन उस वक्त अच्छी अच्छी बातें वो सीख गई थी। और दीना मामी या मिसेस सनरम को हमने फ़ोन दिया और बोला कि बात करो, धन से बात करनी चाहता है। और उस वक्त से ही मामी का ये था, वो भजन संहिता 91 अध्याय में जो लिखा है कि तुम्हारे सामने 1000 और तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुमको तुम्हारा कुछ भी हानि ना होगा। तुम्हारे सामने तीर चलेंगे और मृत्यु तेरे सामने चारों तरफ मंडराएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ भी हानि ना होगा। धन से सुनकर के दंग रह गया, घबरा गया, बोलते हैं बाप रे बाप, ये क्या बोल दे रहे। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि जब कभी जब जब से मम्मी अपना हालत संभाली है, बुरा हालत से उभरते आ रही है, परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन लगी रहती है। मैं एक बुरी आदत में रहता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा टाइम बीत जाता है, मोबाइल पकड़ता हूँ, सिस्टर वाइट की पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बीच बीच में भटक जाता हूँ। लेकिन मामी बाइबल लेके बैठती है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है, वो दाग करते हुए उसको पढ़ते ही रहती है। जब थकती है तो थोड़ा लेट जाती है, लेकिन उठती है तो फिर बाइबल ही पढ़ने, और जहाँ जहाँ हम लोग गलती करते हैं हम लोग को डांटने और सब समय हम लोग को सही रास्ते में ले जाने का पूरा कोशिश उसका रहता है। तो हम लोग कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, ऐसा डांटती है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि जो कुछ हम लोग करते हैं अपने गलती को हम लोग नहीं सोच करके उसको हम लोग सोचते हैं कि झूठ को हमारी गलती को बता रहे, लेकिन ईश्वर उसको अगुवाई किया है और वो बहुत अभी ईश्वर के अगुवाई से चल रही है, और भला बुरा को बहुत अच्छी तरह से वो जानती है, और बुराई में हमारे जीवन में थोड़ा भी देखते, विशेष करके हम ही को उसको डांटने का पूरा फुर्सत मिलता है। थोड़ा भी हम गलती करते हैं हमको अच्छा से डांटती है, जरूरत पड़ता है तो 1-2 पंच भी दे देती है। तो खैर ये हम लोग का घर का आपस का बात है। ईश्वर हमारी रक्षा करता है। ईश्वर में अगर हम बने रहते हैं, ईश्वर के वचन में अगर हम दिन रात समय व्यतीत करते हैं, उसका वचन हमको संभाले रहेगा, उसका वचन हमको पकड़ के रखेगा, उसका वचन हमको ईश्वर से जोड़ के रखेगा। और सिस्टर वाइट की पुस्तक भी हम पढ़ते हैं तो सिस्टर वाइट का पुस्तक जो वचन को इतना सुंदर से एक्सप्लेन करके बताती है, तो हम लोग को समझने और जानने में और बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर आप सबों का, हम सबों को मदद करें कि हम लोग ऐसे समय में जब वास कर रहे हैं, जबकि समय बहुत थोड़ा है, और इस थोड़े समय में कब उसकी क्या घटनाएं पूरा होगी, कब सब कुछ पूरा होगा, उसके बारे हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने धन, अपने दौलत से दूर हटे और सब पूर्ण मन और ध्यान ईश्वर पर दे। धन्यवाद। मैं इस वचन के लिए डैडी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये वक्त है जब हम फिर से एक खास गीत सुनेंगे, और हम बहुत खुश हैं कि इस वक्त लाली दीदी, इलियो जीजा जी और हमारे जितने कोई है रुड़की में हमारे लिए खास गीत तैयार किए हैं, तो इस वक्त हम ये समय उनको देना चाहते हैं। The song which we are going to sing is entitled as How Can I Fear?
When the shadows fall and the night covers all, there are things that my eyes cannot see. I never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries or sorrows, He gives me peace. How can I fear with Jesus? When I'm alone and I face the unknown and I fear what the future may be, I can depend on the strength of my friend. He walks along with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries or sorrows, He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King, He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fear away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries or sorrows, He gives me peace. How can I fear with Jesus? Worries or sorrows, He gives us peace. How can we fear with Jesus? Amen. Such a beautiful song. John 14:27 very rightly says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Thank you so much, तुषार एंड तनुज. आप दोनों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बहुत ही खूबसूरत गाना के लिए. और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस गाने से हमें इस गाने ने हमारे दिलों को छुआ है और परमेश्वर को ये गाने के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. आइए अब समय है प्रार्थना के लिए और हम लोग सब प्रार्थना करेंगे. हम लोग आज 2 प्रार्थना करेंगे. खास प्रार्थना हमारे पूरे परिवार के लिए. ये एक कठिन समय है जब हम अपने परिवार के साथ जब गुजर रहे इस समय से, और हम हमारे पास आशा है. ऐसी बात नहीं है कि हम निराशा रह जाएंगे या हमारे पास कोई होप नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है. तो इस वक्त हम परमेश्वर की अगुवाई चाहेंगे, उसका साथ, उसका दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर, और हम लोग प्रार्थना करेंगे. और मैं अर्जी करूँगी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर किंग दादा, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे. उसके बाद डॉक्टर मेलविन राव बोडेटी, मेलविन दादा,
मैं उनसे अर्जी करूंगी कि वो प्रार्थना करें। तो सबसे पहले किंग दादा हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगा। अगर आपसे पॉसिबल होता है घुटने में आने के लिए तो आप घुटने टेक सकते हैं, नहीं तो ठीक है। If it is possible, we can kneel down. Otherwise, we can be seated. And I this time ask King Dada to lead us in prayer. This is a special time when we can get together to pray as a family. We have so many prayer requests, and as we remember all our family members who are going through difficult times, we'll uplift them in prayer, and God will hear our prayers when we pray together. Let's bow our heads for prayer. Our merciful God, our loving Heavenly Father, we thank you, Lord, that we can come to you in prayer this Sabbath evening. Lord, we remember your promises in the Bible, and we take comfort from them, and we take assurance from them, Lord, that you hear our prayers, that you are never there to leave us. As we heard a beautiful message about how the Bible and the Bible alone can increase our faith and dependence on you. We trust in all the promises that are there in the Bible, Lord, and we claim them for ourselves. We pray, Lord, that you will reach out to each and every member of our family this evening. There are so many of us, Lord, who are not well. In a special way, Lord, we pray for our Ivy auntie and family in Pune. We pray for Claudius Mosa, who is on oxygen. We pray, Lord, that your treatment, the treatment that is being given, will heal him. We pray, Lord, we have come to know that there is lack of oxygen and ventilators in the city. We pray, Lord, that you will make arrangement for some support, whatever is necessary to reach him on time. Commit him to your hands in a very special way. We pray for Ivy Mosi. We pray for Preeti. We pray for Naomi. We pray for Jade and his parents. We pray for Claudia, Quincy, all of them who are not well or affected by the virus. We thank you, Lord, for protecting them and helping them recover. We also want to remember, recently we lost Mona Didi, and we remembered her lives. We want to uplift the family in prayer in a very special way. We pray for Sukun Badima, Bada Baba in Naxalbari. We also pray for Turu Dada, Sharda Bhabi, and Poppy and Silky. We want to lift them up in praise in a very special way, Lord, that you will comfort them, that you will you will reassure them of your love, your forgiveness, and you will give them the hope of seeing the loved ones again when Jesus comes. We want to lift them up in prayer in a very special way. We also have other members of our family, Lord, who are not well. We pray for Roshan. We pray for Mr. Ashok. We pray for Babu and family. We pray for Gilu and family. We pray for Augustine and family. We pray for Lotus auntie. We pray for Bablu, and all the Hanzak family, the Henderson family. We commit each one of them into your hands, Lord. We pray, Lord, that you will come close to them. We also pray for Ricky. We also pray for Kapra. We thank you, Lord, for helping them get over this infection and get over this disease. We want to ask for forgiveness of our sins, Lord. We also pray that you will not just heal us physically, but also heal us from within. Heal us of our sinfulness, heal us of our unfaithfulness.
we have many times been unfaithful to you. We have turned our hearts away from you. We pray, Lord, that you would forgive us and help us to see you in the beauty of your holiness and trust you more and more with our lives. Help us. We want to surrender ourselves completely to you, Lord. We want to surrender our lives to you completely, and we don't want to trust our own understanding. We just want to trust in your understanding, and we want to have the assurance, the peace that you have promised, peace that passes all understanding, that you will give each one of us. In these troubled times, Lord, we only have you to give us this peace, and we have your promises. As you said, Lord, you will protect us. Thousands may fall on your left and 10,000 on your right, but not one arrow will hit thee. We take these promises, Lord, and we claim these promises that that our lives will be preserved by you. But nevertheless, Lord, that not our will be done, but we pray, Lord, that your will be done in our lives. And if it is your will, Lord, you will protect us. Even if it is not your will, Lord, we pray, Lord, you will preserve us from and protect us from the sufferings that Satan is throwing at each one of us. Preserve our faith, Lord. Help us not to lose faith. We pray, Lord, that you will not take away the Holy Spirit from us, but you will pursue us in spite of our rebellion and our unrighteousness. We want to commit each one of us into your hands, Lord. We pray for all the elders in our family. We pray for younger ones in our family. We pray for children in our family, Lord. May we all together as GPD family be found in your kingdom in heaven together, and we can be together, Lord. We know the purpose of this ministry is that our families will come together, and we believe, Lord, that you have a purpose that we meet every Friday like this, and we want to be found in your kingdom. We want to be found in heaven with you. And to this end, Lord, we commit each one of us into your hands, and we pray that we will never lose faith, and we will always be faithful to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah. Let's pray. Our Father in heaven, in all the prayers and all the songs and the scriptures and the messages that we have heard today, we know that our hearts need to be turned to you. We ask you for forgiveness first of our sins, in that we have exalted our highly opinionated self, and I pray that you would help us so that we can be able to realize there is no virtue, as was mentioned, there is no goodness in us, but we ask you for the blood of our Savior to cover us. We pray, dear Lord, as we come with our petitions on bended knee, we pray knowing full and well, dear Lord, that our only dependence, as was mentioned, can be upon you. I ask you for the many requests that have been brought before your throne of grace, either verbally that was mentioned or those that are there in our hearts that we have not voiced, but then you know the desires of each of our heart. I ask you especially, dear Lord, for a double portion of your sweet spirit. We ask you because we know that our dependence cannot be upon self, as was mentioned, but that we can be able to depend completely on you. You have mentioned in your word that if we were to acknowledge you in all our ways, that you would be able to direct our paths. We simply ask you in faith, trusting and believing in the one who has given us these assurances and these promises, that you would be able to be faithful to complete them until the day that Jesus Christ comes through those clouds. I ask you now that you would be able to hear and answer, dear Lord, the petitions for health. There are many who are not well, dear Lord, and those who have lost loved ones. I pray for the assurances of your promises that you have made, that you will rebuke the devourer, you would rebuke the one who brings about these diseases, and also, dear Lord, that you would take away these Egyptian diseases from us. Help us so that we could be able to learn to right any aspects of our life that we need to be able to do to make sure that there is health and joy and happiness in our hearts, that you can be able to heal us.
I ask you, dear Lord, for forgiveness of sins first, that your sweet spirit continues to work upon people's lives. And if it be in accordance with your will, to bring glory and honor to your name, that you would bring a restoration and healing. I also pray, dear Lord, that you would be with our homes and our families. We thank you for the message that we heard today, that we can be able to return back to you and be found in you. We know, dear Lord, that you have plans for each of our homes and our lives, plans to prosper us and to give us a decided end. Help us as we place our trust and our faith upon you, that you would be able to fulfill those promises. I also pray, dear Lord, that you would be with those who are still struggling in the valley of decision, and that they can be able to have an opportunity through these programs and many others to be able to hear the voice of God calling them. I pray that now, before it's ever too late, that we could be able to make sure that our salvation is secure. I ask you that you will help us to keep our eyes fixed upon Jesus and all that he's doing in the heavenly sanctuary above. Help us so that we can be able to send our sins ahead of time to be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of our Lord. And then Jesus Christ comes, that we can be able to say, this is our God, we have waited for him, and he would be able to save us. Thank you once again, dear Lord, for these and many other opportunities that we have to be able to call on your name. I pray that you would be with us through the night. For those in India and those of us here, that you would prepare our hearts for the hours of the Sabbath. And that, dear Lord, that this Sabbath would be a foretaste of what your privileges that you give us as your people to be able to spend an eternity with you would be like. Thank you for hearing our prayers and keeping us. In Jesus' most sweetest name we pray. Amen. Death is defeated.